اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، آج ریاست گجرات کے سورت شہر میں کالی پل امبواڑی کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایک بڑا اسٹیج پروگرام جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہونے جا رہا ہے، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا ہے، اس لیے میں گجرات کے لیے نکلا ہوں اور آواز کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ اپیل ہے کہ سورت اور آس پاس کے جو لوگ ہیں جو میری اس خبر کو سن رہے ہیں، وہ رات میں 8:30 بجے کالی پل امبواڑی سورت کے اس پروگرام میں ضرور پہنچے اور فائدہ اٹھائیں، اور زیادہ سے زیادہ اس دعوت کو شیئر کریں اور دعائیں کریں کہ اللہ کریم میرے سفر کو آسان فرمائیں اور آج ہونے والے پروگرام کو بے انتہا اللہ کامیاب فرمائیں۔ میں جہاں بھی رہوں، جہاں بھی جاؤں، مگر آواز کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں بھی آپ تک خبریں روانہ کرتا ہوں۔ آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ آخرکار مہاراشٹر میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے اور آج سے ضابطۂ اخلاق کا نفاذ بھی عمل میں آ گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 246 نگر پریشد، 42 نگر پنچایتوں میں 2 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی اور 3 دسمبر کو رزلٹ نتائج آئیں گے۔ ایسے ہی نامزدگی فارم جمع کرنے کا عمل 10 نومبر سے 17 نومبر تک رہے گا۔ 18 نومبر کو اسکروٹنی ہوگی اور 21 نومبر کو فارم واپسی کی آخری تاریخ طے کی گئی ہے۔ کل ووٹرز اس وقت 1,60,00,000 ہے۔ پولنگ مراکز 13,155 ہیں۔ ووٹنگ سسٹم میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی EVM ہی رہے گی۔ ظاہر بات ہے کہ EVM رہے گی تو کیا کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور صدر کے عہدے کے لیے اخراجات کی حد یعنی خرچ کی حد 15 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ ممبر کے عہدے کے لیے اخراجات کی حد 12 لاکھ روپے اس طریقے سے اعلان کیا گیا ہے۔ انتخابی شیڈول بھی پوری طریقے سے سامنے آ گیا ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہار میں جو الیکشن کا شور تھا، ہنگامہ تھا، تشہیری مہم تھی، ایک دوسرے پر حملے ہو رہے تھے، ان تمام چیزوں کو لے کر اب خبر آ رہی ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات پہلے مرحلے کی تشہیری شور کا سلسلہ آخر تھم گیا۔ 121 سیٹوں پر
6 नवंबर को राय दही होगी। तमाम तैयारियां बिहार में मुकम्मल हो चुकी है। आप जानते हैं कि बिहार में नफरतों का बाजार इतना गर्म हुआ कि कोई हाथ काटने, कोई जबान काटने, कोई उंगलियां काटने की धमकी दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो यहां तक के बाकायदा कुछ नेताओं की वीडियो वायरल हो रही है कि लोगों को क्या अजीब व गरीब अंदाज में धमकियां दे रहे हैं कि अगर बीजेपी को वोट ना दिया तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लाइट काट देंगे, पानी काट देंगे, और न जाने क्या क्या धमकियां दी गई। फिर स्टेजों से, सभाओं में, जनसभाओं में बड़े बड़े नेता एक दूसरे को कैसी कैसी धमकियां दे रहे हैं। बड़ा अजीब मरहला था। खैर, दुआएं हम सब मिलकर करते हैं कि अल्लाह ताला बिहार को नफरतों की राजनीति से बचाए और नफरती लोगों से बिहार की अल्लाह हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, SIR। आप जानते हैं कि यह ऐसा नापाक अमल है जिसके जरिए से बाकायदा लाखों करोड़ों वोटर्स को वोट के हक से महरूम किया जाएगा। और क्या साजिशें हैं, क्या गंदी हरकतें हो रही है, वो बिहार में पता चल चुकी है। इसलिए अब SIR के खिलाफ खबरें आ रही है कि ममता दीदी भी मैदान में आ गई है। और गुज़िश्ता कल ममता बनर्जी ने संविधान हाथ में लेकर एहतजाज किया। मगरबी बंगाल में खामोश धांधली इसे करार दिया गया। ममता ने केंद्र सरकार और कमीशन पर जमहूरियत को कमजोर करने का इल्जाम लगाया है। ममता दीदी ने कहा है कि बाकायदा केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर सेकुलरिज्म को, जमहूरियत को खत्म कर रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, बिहार में इलेक्शन सभाओं, प्रचार और प्रसार के दौरान नरेंद्र मोदी ने बड़ी अजीब घटिया हरकत की। और वो घटिया हरकत ये की कि बिहार के नौजवानों को रील्स बनाने का मशवरा दिया जा रहा है। जैसे पहले पढ़े लिखे जवानों को नौकरी न देते हुए उन्हें पकोड़े तलने का मशवरा दिया जा रहा था, तो ऐसी रील्स का नया मशवरा मोदी जी दे रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर सख्त हमला किया और कहा कि बिहार के नौजवानों को रील्स का नया नशा दिया जा रहा है, लेकिन हमें तो बिहार के नौजवानों को तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी और रोजगार न देते हुए उन्हें रील बनाने का नशा दिया जा रहा है, क्योंकि नौजवान अगर रील में मस्त रहेंगे तो असल मुद्दों से भटके रहेंगे, असल मुद्दों पर ध्यान नहीं जाएगा और इसी तरीके से ये लोग सत्ता और कुर्सी पर जमे रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए बिहार के नौजवानों के मुद्दों को उठाया। रोजगार, बेरोजगारी के मुद्दों को जबरदस्त अंदाज में राहुल गांधी ने उठाया। आइए, बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, SIR यानी वोटिंग लिस्ट पे जो नजर सानी के जरिए से लाखों वोटर्स को, करोड़ों वोटर्स को निकालने की नापाक साजिश की जा रही है। इसको लेकर अब अलग अलग जगहों से आवाज उठ रही है। तमिलनाडु से खबर आ रही है कि तमिलनाडु में वोटर फेरिस्त की खुसूसी नजर सानी के खिलाफ यानी SIR के खिलाफ DMK ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। DMK ने कहा है कि SIR ये संविधान के भी खिलाफ है और जमहूरियत को, सेकुलरिज्म को कत्ल करने की एक नापाक साजिश है। इसलिए स्टालिन ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा SIR के खिलाफ खटखटाया है। नाज़रीन, बिहार के प्रचार सभाओं में जो जहरीले भाषण हो रहे हैं, उन जहरीले भाषणों में कई भाषण सामने आ रहे हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी का भी बड़ा भाषण सामने आया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि तेजस्वी के अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, फिर भी तेजस्वी अपने आप को खुद को बड़ा लीडर समझते हैं। ओवैसी ने मंगल के रोज पूर्णिया में एक अवामी रैली में बिहार की सियासत पर सख्त हमला किया। उन्होंने सीमांचल को मरकजी धारे की सियासत में शामिल न करने पर रियासत के हुक्मरान लीडरों की पर तनकीद की। रैली के दौरान उन्होंने बराह रास्त महागठबंधन और तेजस्वी यादव को भी निशाना बनाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और फिर भी वो खुद को बड़ा लीडर समझते हैं। नाज़रीन, बिहार में भारतीय जनता पार्टी कैसे जहरीले और घटिया किस्म के बयानात दे रही है,
एक तरफ तो उनके अब्बा हुजूर जब नरेंद्र जी मोदी नौजवानों को रील्स बनाने का मशवरा दे रहे हैं, और भाइयों बहनों हमने क्या कर दिया और कितना सस्ता कर दिया, रील बनाना कितना आसान कर दिया, इंटरनेट कितना सस्ता कर दिया, इन तमाम चीजों का मशवरा दे रहे हैं, जिस पर राहुल गांधी ने जबरदस्त हमला किया। लेकिन अभी बड़ी खतरनाक खबर आ रही है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के एक मरकजी वजीर लल्लन सिंह, इनका बड़ा घटिया और नीच किस्म का बयान सामने आया है। वो बयान देते हुए कह रहे हैं कि जो हमें वोट न दे उसे घर से निकलने मत देना, जो हमें वोट न दे उन्हें घर से निकलने मत देना। खैर, लल्लन सिंह पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मगर आप समझ सकते हैं मुकदमे में कितनी जान होगी। लेकिन यह खबर बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी नीचता और कितने गिरे हुए लेवल पर इलेक्शन को ले जा रही है। नाज़रीन, इस वक्त छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक दर्दनाक ट्रेन हादसे की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी के ऊपर एक मुसाफिर ट्रेन चढ़ गई, मालगाड़ी के ऊपर, जिसमें 6 अफराद के मरने की और कई मुसाफिरों के जख्मी होने की खबरें आ रही है। हादसा मंगल की दोपहर पेश आया जब एक मेमो मुसाफिर ट्रेन का कोच मालगाड़ी से टकराकर उसके ऊपर चढ़ गया। यह वाकया बिलासपुर स्टेशन के पास शाम तकरीबन 4 बजे पेश आया। इब्तदाई जानकारी के मुताबिक 6 हलाकतों के अलावा तकरीबन 1 दर्जन अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, मेरे अपने शहर और मेरे अपने जिले जलगांव की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, 2 दिन पहले जलगांव के MIDC एरिया में मामूल के मुताबिक जिस तरीके से जिले में वारदात हो रही है, लगातार कहीं से न कहीं से गोलियां चलाने की खबरें आ रही है, तो MIDC एरिया में भी एक मुजरिम, एक आतंकी ने ऐसी गोलियां चलाई कि एक मुस्लिम नौजवान की मौत हो गई और मामूली बात पर गोलियां चल गई। खैर, मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जिस मुजरिम को गिरफ्तार किया गया है उस पर इससे पहले भी MPDA लगा हुआ है, यानी वो आदी मुजरिम हैं। इसलिए गुज़िश्ता कल हम लोगों ने जलगांव जिला SP रेड्डी साहब से मुलाकात की। अब्दुल करीम सालार साहब, सैयद अयाज अली, खालिद बाबा बागबान, अमजद पठान और पूरी टीम, अलग अलग संगठनों के तमाम लोग मौजूद थे, बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। और हमने SP साहब से मुलाकात करके उनसे कड़ी कार्रवाई की मांग की और ये भी मांग की कि जो मुजरिम सुधर नहीं पा रहे हैं, MPDA लगाए जाने के बावजूद बार बार वो जुर्म कर रहे हैं और इतने संगीन जुर्म के लोगों की जान ले रहे हैं, ऐसे मुजरिमों को मुंबई के तर्ज पर एनकाउंटर स्पेशल सेल यहां भी बनाया जाए और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ऐसे मुजरिम जो बकायदा लोगों की जानें ले रहे हैं। और जलगांव सिटी जो है वो गोल्डन सिटी कहलाता है, गोल्ड सिटी कहलाता है। लगातार लूटमार की वारदातें, घरफोड़ी की वारदातें, मुजरिमों के दिल से कानून का डर पूरी तरीके से निकल चुका है। चोरी चमारी और हर तरीके से जुर्म यहां पर हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने अपील की है कि कानूनी कार्रवाई सख्त की जाए। हालांकि SP साहब ने यकीन दिलाया है कि कानूनी कार्रवाई सख्त की जाएगी और मौका लगाने की भी उस पर तैयारी कर ली गई है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दे में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट BOMS डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।